And before that, somebody said me to go for concentrated gratitudes. Okay. So I just took the book and I started writing because I knew what type of girl my son needed. Okay, he is in USA settled. So that time was COVID time. So there were about 100 proposals going on, 100. And sometimes the parents were telling, no, COVID time, this thing, if the guy is settling as he's a CA from India and he's done MBA there. So if the guy settles here, is fine, we can go forward. But my son said, not now. I don't know what future is going to tell me. If I have to settle in India, I will settle here. But at present, I'm here in USA. So girls were telling, नहीं, कुछ girl बोल रही थी हम वापस नहीं आएंगे, कुछ बोल रही थी इंडिया में सेटल होना है. They were even talking to each other, but somehow the things were not settling among themselves. Okay. So then I wrote a concentrated gratitude that what type of a girl we need. So what I had written about her, that nature, she should be मैम cared. बहुत सारे, एक्सक्यूज मी मैम, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, आप हिंदी में बताएंगे तो ज्यादा सही रहेगा. अच्छा, ओके ओके. कि लड़की का स्वभाव कैसा होना चाहिए. मैंने कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड में सिर्फ शादी के बारे में ही लिखा, उसमें और कुछ नहीं लिखा. दैट डे वाज ओनली राइटिंग दैट ग्रेटिट्यूड्स कि मुझे क्या क्या चाहिए. सो लड़की का स्वभाव क्या होना चाहिए. एंड बिकॉज आई हैव, मुझे डॉटर भी है, तो मुझे ऐसे लग रहा था दोनों की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स होवे and they should be mixing with each other. Son ke saath she should settle. And my son said ki I want a girl who should agree, even if I have to come back to India, she should be ready to come back to India. Or if I have to settle there, I will settle there. So I wrote everything in that. Then comes the marriage part. I wanted a destination wedding. Even then there was a COVID, Shalom. So I wanted a destination wedding. I wrote about the destination. But I didn't write the place, So that time I said, magic book, मैं इसमें ज़्यादा बाद में आई हूँ. So then I wrote the destination, that I want a destination wedding, and I'm a Sindhi, so we Sindhi people need very good parties and all, and then my cocktails party should be so dhamaka that people should literally dance on the table, and other things should be there. My every function should there be a singer. And whatever marriage में मुझे चाहिए था, I wrote my clothes. We all should look beautiful. My all people are there. Whoever I invited are attending the wedding. Because COVID का तभी थोड़ा डर लग रहा था. And secondly, उसको H1 visa का stamping नहीं मिल रहा था because of COVID. वो खुल नहीं रहा था window. So I said, first of all, I wrote that he gets the appointment for that H1 visa. That also I added because the marriage is only possible after that. And the girl ka swabhav ho gaya, marriage how it is there. And they both are, I'm seeing them very happy. They both are happy, apne views pe mix hoye hain. And the girl, I don't wanted the girl ko itna khichav ho USA jaane ke baad ki all the time parents and that thing. So she should be attentive there also. And her time, girls go and they get married, they want to meet their parents. I want to go. I said, no, she should come with my son and go back with my son. And they are happy. Or bhi kuch points maybe mujhe yaad nahi hai, but it was regarding them. Education, he needed a educated girl. Wow. Because he himself is CA, educated girl. And uska swabhav acha hona chahiye. Mere ghar mein my son, so very nice. And you yeah, tell me, Shani. Please आप complete कीजिए पहले. So, and what happened exactly same Shalu. मैंने उसका complexion भी लिखा था. Wow. And मैंने उसका what type of a girl she should be with good height. My son is heighted. और मैंने उसका weight नहीं लिखा था. Slim and all. So she was healthier side because my son is little healthier side. So main was my nature. She should blend in the house. And exactly same. I had written about the relation with the people also. Wow. With her parents. Like my relationship with the parents should be so nice कि उस वजह से हम families बहुत mix करके रहती हैं. आज 2 साल हुए हैं, touch wood. Very everything nice. Party went same. Shalu, people were dancing on the table. Wow. On the table. All function had a different singer. Abhi 4th variation tha uska
कोविड का. My हाँ, destination went to Indore because बड़ा मैंने destination नहीं लिखा था किधर. वेरी नाइस. मतलब आपके मैनिफेस्टेशन से कई चीजें मिल रही. पहला, नेचर में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, डजेंट मैटर. आप क्या चाहते हो, फोकस ऑन दैट कि मुझे ये चाहिए. फोर्थ वेरिएशन चल रहा है जब लिमिटेड सब चीजें थी, सब कुछ था, बट स्टिल आपको वो चाहिए था, आपने उस पर फोकस बनाए रखा और वो सारा कुछ हुआ. वेरी नाइस. मतलब बहुत कुछ सीखने को मैंने मिला. 1.5 साल कोविड चल रहा था. 1.5 साल कोविड चल रहा था. मैंने उसको भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि 1.5 साल में मेरे को प्रपोजल्स ने बहुत ये हो गई थी. मैं हाँ you know हाँ. I mean I was literally feeling out of this thing कि I was telling my son वापस आ जाओ, forget it. And here we'll see because so many proposals. Doctors are there. They said if he's settling here, we are going. Otherwise, we have to give some exams there. This thing, that thing. But then my son is also a little positive, and he has done some access consciousness with me. Little. That's a course. I don't know. You heard about it? Access consciousness. नो मैम. Okay. So he would say, आज तक अच्छा हुआ है तो आगे भी अच्छा ही होगा. He have that point of view. So then उसने एक लड़की इंदौर से, and the proposal comes how, Shalu, out of the blue, one girl lady is calling me up after this concentrated gratitude कि मैम एक proposal है आपके लड़के के लिए, आप interested हो? I said but मैंने तो आपको कोई बायोडेटा भेजा ही नहीं है. Saying नहीं, मेरे को वाया मिला है. I said okay. She said आप देख लो. I said okay, अभी आया है कुदरत से. तो I started, and those people also she sent the same my biodata. उनको भी नहीं जानती है. यूनिवर्स So ने I said सब okay. अरेंज किया अकॉर्डिंग टू यू. वाह. Yes, वेरी yes. नाइस. मुझे So देखो क्या सीखने को मिला. गर्ल का मैं नेचर भी उतना अच्छा है. Yes, and my wedding तो वैसे हो ही गई, and they both are happy there. And you believe when they visit to India, they come both together, go both together. वाह. एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड. मतलब मैं तो इसमें से बहुत कुछ लर्निंग्स ले रही हूँ कि मैंने क्या क्या सीखा, और मैं चाहती हूँ कि जो जितने लोगों ने भी सुना वो भी इस लर्निंग पर फोकस करें. पहला, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड, जैसे उन्होंने बोला कि वो फोकस वाली बुक भी वही सिखा रही है कि जब आप एकाग्र होके कॉन्सेंट्रेट होकर किसी एक चीज को एनर्जी देते जाते हो, नो मैटर व्हाट कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है. कोविड जैसी सिचुएशन में जहाँ पे इंसान ही सोचते हैं अरे छोड़ो ना यार, बट स्टिल वो चीज हुई. कहाँ कहाँ से वो प्रपोजल आया, सब कुछ वो कहाँ से होगा, वो सब अपने आप के 100 ऑफ प्रपोजल्स जो उनको आ रहे थे, लेकिन ये रैंडम वन कहीं से आया बिकॉज ये यूनिवर्स का भेजा हुआ प्रपोजल था. तो आपको क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए. कहाँ से आएगा वो यूनिवर्स का काम है. आप कॉन्सेंट्रेट होकर उस पर प्रैक्टिस करो. और उसमें मुझे जो सबसे अच्छा लगा, सिचुएशन कुछ भी चल रही हो भाई, अगर मैंने ये सोच लिया ये होना है तो ये होना है. ये मुझे सबसे बेस्ट लगा कि मेरे को मेरे उस पर यकीन होना चाहिए कि मैंने जो सोचा है. इसमें पता है एक बड़ी चीज क्या है, जैसे हम लोग कितना सारा पढ़ते हैं और ये वाला बात हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि हमारे ही वर्ड्स में पावर है क्रिएट करने की, हमारे ही माइंड में पावर है विजुलाइज करने की, सब कुछ क्रिएट करने की. बट कभी कभी ना बाहर का हम देख के अपने ही चीजों पे शक कर जाते हैं, जब हमारे पास वो कितनी बड़ी शक्ति है ये कि मैं कुछ भी बोलती हूँ वो सच हो जाता है, वो चीज मैनिफेस्ट होती है, मैं जो सोचती हूँ, मैं जो विजुलाइज करती हूँ, मैं जो लिखती हूँ वो सच होती है. बट क्योंकि हम बाहर देख लेते हैं और उस चीज से फिर हम अपनी ही चीजों पर डाउट करना शुरू करते हैं. हम लोग ऐसी डिवाइन बीइंग्स नहीं है. हम लोग एक्चुअली में उस एनर्जी से बने हुए हैं जो जिसने ये दुनिया पूरी बनाई, और उसने हमको वो एनर्जी दी कि आप अपनी दुनिया बना सको. तो हमारे पास वो पावर है. इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना यकीन है. वेरी अमेजिंग शेयरिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के. Believe my son said I will not get a छुट्टी of more than 3 weeks. अब मैंने वो भी लिखा कि मुझे छुट्टी लंबी चाहिए, शादी नहीं तो पॉसिबल नहीं हो सकती है दैट टाइम. चलो मैं आऊंगा अगर H1 वीजा के लिए 3 weeks. In that week you have to everything should be done. तभी मैं अपॉइंटमेंट लूं. बट यू बिलीव इट, ये हो गई दोनों ने 2-2.5 महीना बात किया, एंड द एंगेजमेंट वाज डन विदाउट सीइंग ईच अदर. Beautiful. They were talking, they were making video calls. I did video call with the girl. I also didn't go to see her. She's from Indore. And I said, okay, whatever, this is universe has sent this beautiful, this thing for me. I still don't call her daughter-in-law. I'll tell her daughter-in-love, Very nice. मेरे फोन में फीट है DIL.
and her name. So my husband teases me, जा तेरे दिल का फोन आया है, जा तेरे दिल का फोन आया है. Oh, so sweet, daughter in love, दिलवा. वेरी नाइस. बहुत सारे आइडियाज दे दिए, आपको पता ही नहीं आपने मुझे कितने आइडियाज दे दिए. और बहुत सारे लोगों को. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू, थैंक यू. मैम डेली में क्या प्रैक्टिस करते थे रोज? अब सवाल आएंगे. रेगुलर था मेरा प्रैक्टिस, लेकिन एक दिन बैठ के मेरे को क्या झटका लगा, मैंने कहा आज कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लगता है, क्योंकि ये बुक्स करते करते मुझे कहीं पे ये वर्ड किसी ने बोला, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड आ गया था बुक में, एक में है इसमें. सो आई स्टार्टेड राइटिंग दैट ओनली. तो मैम जैसे आप क्या हर चीज शादी चाहिए के बारे करके में. लिखते थे क्या? चाहिए हाँ करके जी. लिखते थे क्या? हर चीज जैसे ये मुझे अरे ऐसा चाहिए नहीं. वैसा चाहिए आप हाँ, लिखते थे? हो गया. थैंक यू, थैंक यू, हो गया. थैंक यू. यस, वही जो हम लिखते हैं वही My वही लिखे थे ना? यस यस yes, ओके. yes. My थैंक यू मैम, बहुत son's अच्छी तरीके से आपने wife is समझाया. very nurturing, caring, sweet, and जो भी उसका नेचर का था. मेरी मेरी अपनी लड़की के साथ इन दोनों फ्रेंड्स बन के रह रही हैं. मेरे साथ वो मेरी एकदम डॉटर बन के आई है. So all that was written in a very elaborated form. ये मैम सारा रोज लिखते थे नहीं, वो या एक ही दिन विजुअलाइज लिखते करते थे. थे सिर्फ? मैम ये वही प्रैक्टिस करते थे जो आपको बताया जा रहा है, बट उन्होंने वो कॉन्सेंट्रेट किया. वही तो है कि हमें अपने पे यकीन नहीं होता. मैम आप म्यूट हो गए हो, गलती. आपने खुद को म्यूट कर लिया है. मैं उस दिन सिर्फ मैरिज का लिखा और कोई ग्रैटिट्यूड नहीं लिखा, सिर्फ मैरिज का ही लिखा. ओनली मैरिज की मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए. आज भी वो लोग दे लिटरली से कि हमको अगर कोई समधन मिली है तो वी हैव गॉट इट, दैट वे दे प्रेज. एंड बहुत इवन सारे आई एम मैसेज हैप्पी, आने दैट लगे मच कि हैप्पी बहुत विद सारे दैट. लोगों को आइडियाज मिल गए. लिटरली एक्चुअली में बहुत आइडियाज करो जिनको एंड समझ ब्लेसिंग्स आया. थैंक यू जी. आज आप और यही सबको ब्लेस करेंगे लास्ट में. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. रश्मि मैम का क्वेश्चन है. नहीं, क्वेश्चन नहीं है, शेयरिंग है. हाँ जी, बताइए. हाँ, मेरी बेटी के बेटा हुआ है, तो उसको वाह. 40 डेज हो गए, तो उसको पैर फेरे के लिए आना है हमारे यहाँ ना. हाँ तो हाँ. हमारे यहाँ जैसे अच्छे से हम लोग बड़े शौक से सब कुछ देते हैं. तो हमें भी जैसे आपने बताया रोज सुबह उठ के और सब मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, तो एक अच्छी खासी एक अमाउंट थी, लेकिन और भी हमें जरूरत थी. तो हमें एक आदमी से पेमेंट लेनी थी, तो अभी उसको 10 दिन बाद देनी थी. तो कल उसका मेरे हस्बैंड के पास फोन आया कि गुप्ता जी मुझे ना कहीं जाना है, तो मैं आपकी पेमेंट ना आज ही इतने लाख की भिजवा रहा हूँ, तो आप वाह. वो रख लीजिए. तो वेरी. इतनी खुशी हुई, इतना मैंने धन्यवाद किया यूनिवर्स को. और हमारे जो ड्राइंग रूम का एसी है ना, वो थोड़ा सा पुराना था, मतलब काम करा था, चिल्ड नहीं था. तो मैंने हस्बैंड से बोला, कहते हैं ठीक है तुम्हें ज्यादा लगता है. मैंने कहा नहीं. तो हमारे एक जानकार है, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा भाभी आप बोलो मैं अभी भिजवा देता हूँ. विदाउट टेकिंग अ पेनी उन्होंने मित्सुबिशी का इतना बढ़िया 2 टन का एसी हमारे यहाँ भिजवा वाह. दिया. वो सुबह भिजवाया, लग भी गया, और अभी तक उसका एक भी पेमेंट नहीं गई. बस इंस्टॉल करने वाले रुपए ले गए हैं. और वो ऐसा चिल्ड हो रहा है कि बस बता नहीं सकते. ग्रैटिट्यूड काम कर रहा है आपका अब. हाँ. और मैंने अपनी अलमीरा थोड़ी संगवाई, तो उसमें से मुझे 3 इन्वेलप्स मिले, उसमें भी कई ऐसे. हजार रुपए थे. वेरी हाँ. नाइस. ये तो पता है बहुत प्रैक्टिस की बात बहुत. है. जैसे आप हो गए है ना, हाँ. ममता मैम हो गए, नेहा मैम है, हार्वी मैम है, बहुत सारे लोग हैं, स्वीटी मैम हो गए, बहुत सारे लोग हैं जिनके मुझे नाम, क्योंकि वो कैमरा ऑन नहीं है ना तो ऐसे दिख नहीं रहा मुझे, जो हम्म. एक्चुअली में प्रैक्टिस हम्म. करते हैं. जो ये नहीं सोचते कि कोई छोटा सिखा रहा है कोई बड़ा सिखा रहा है. उनको ये पकड़ना है भाई मुझे सिखा क्या है. मैंने ना एक बहुत खूबसूरत आज मेरी किसी से बात हुई अपनी फ्रेंड से, उसने बड़ी अच्छी लाइन बोली कि जो काम का है ना वो लेते जाओ, जज नहीं करो. जो आपको लगता है ना, जैसे मैं ममता मैम से मेरे को खुद सीखने को मिल गया कि अरे यार ये हम्म. कितना अच्छा है, ये भी तो कर सकते हैं ना, ये भी तो हम्म. तो सीख रहे सब लोग सीख ही रहे हैं. ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है. अब कोई और हाँ. शेयरिंग करेगा, जैसे अभी अपना पेड ग्रुप है उसमें शेयरिंग करते तो सब बोलते हैं यार मेरे को भी सीखने को मिला, कितनी अच्छी शेयरिंग, अच्छा मैं हाँ. नेक्स्ट टाइम से ये करूंगी, है ना. तो वो चीज है. मुझे ऐसे मैं ध्यान से सुनती हूँ कि यार इसमें मेरे लिए भी क्या होगा, तो मैं वो ले लेती हूँ. अपनी इकट्ठा कर लो जो जो आपकी इंपॉर्टेंट की चीजें हैं वो लिखते जाओ. आपको प्रैक्टिस हम्म. से मतलब है, आपको किसी कौन सिखा रहा है कौन बता रहा है क्या है, किसी से कोई मतलब नहीं है. कोई मतलब नहीं वो है. जो आपको ऐसे लग रहा है यार ये मेरे जैसे, अभी हार्वी मैम का नीचे मैसेज आया था कि ममता मैम की शेयरिंग से उनको आइडिया मिल गया, वो कब से अपने बच्चे के बारे में हम्म. सोच रहे थे.
और एक और को आइडिया मिल गया होगा, वो अभी है नहीं, शायद रिकॉर्डिंग सुनेंगी, बट उनको भी आइडिया मिल गया होगा। आपकी शेयरिंग कितने लोगों को मोटिवेट करती है आपको नहीं पता, वो लोग उसमें से अपना ले लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम पता है क्या होती है, आप अपनी प्रैक्टिस पे यकीन नहीं रखते। जो ममता मैम ने किया, ममता मैम ने वही चीज की है जो प्रैक्टिस सिखा रही है, कि उन्होंने बैठ के उस चीज को एनर्जी दी, फोकस्ड ग्रैटिट्यूड, वो कॉन्सेंट्रेट होके बैठे के। और जो हम लोग कर रहे हैं 88 टाइम्स, जो आप इतनी मेहनत से कर रहे हो और आपको उसके रिजल्ट्स मिले, वो सब कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड में आता है। कि आप 88 टाइम्स जो चीज लिख रहे हो, 1 घंटा लग रहा है आपको लिखने में, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड हो रहा है वो आपका, है ना। बट वो चीज हम उस, क्या होता है, अपने पे डाउट कर जाते हैं। सीखने वाली चीज सीखो, लेकिन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर भरोसा रखो, कि उसको नहीं डगमगाना है, उसमें ऐड कर सकते हो आप चीजें, लेकिन वो भरोसा नहीं हिलना चाहिए कि यार मैं सही तो कर रही हूँ, मैं गलत तो कर रही हूँ। अगर आप सही समझ रहे हो ना, उसको सही सही चीज को प्रैक्टिस, वो कॉन्सेप्ट ले पाए हो, बस आप प्रैक्टिस करो, वो सही है ना। थैंक यू सो मच, बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग्स हुए आज। थैंक यू जी। अभी हम स्टार्ट, ये चालू, मैंने हाँ, तो जो गिफ्ट बांटनी थी मैंने वो भी लिखा था और वही गिफ्ट बांटी गई। वही अब देखो, ये मुझे आइडिया पे आइडिया दे रहे हैं इनको पता ही नहीं है, ये मुझे और आइडिया पे मेरी आइडिया दे रहे गिफ्ट, हैं मुझे जो गिफ्ट बांटनी थी उसमें चांदी भी था, सब था, थोड़ा बड़ा बांटना था। हाँ, सो पहले लिखने के टाइम पे मैंने नहीं सोचा, मैं कहा चलो यार देखा जाएगा, लिख तो देख लेते हैं। लिख लिया, बिलीव करो उतना ही अमेजिंग, मेरा हर बेडरूम में वो गिफ्ट गया। लाइक पीपल वर एस्टोनिश्ड कि ऐसा बड़ा गिफ्ट भी लोग बांटते हैं क्या। वेरी नाइस, ये तो तो मैम बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। इट वाज थैंक यू। वन ऑफ द, आई गॉट, आज मुझे किसी का फोन आया, तब मैंने कहा कि मैं ग्रुप में ही बांटूं, आई मीन बताऊं तो एवरीबॉडी विल। अपने ही ग्रुप से आया होगा, क्योंकि आई थिंक उस टाइम आपने शेयरिंग किया था ना, शायद मुझे टाइम चाहिए, मैं तब उस दिन अपनी शेयरिंग करूंगी शायद। बट थैंक यू कि आपने यहाँ पे किया, बाकियों तक भी पहुंच पाया है ये। बेनिफिट सब लोग ले लेंगे ना। हाँ बिल्कुल व्हाई बिल्कुल। कीप इट टिल आवर। हाँ, कुछ भी अच्छा हो रहा हो प्लीज शेयर करो। आपकी शेयरिंग से सामने वाले को लगता है यार मेरे को और प्रैक्टिस करनी है। अभी ममता मैम और रश्मि मैम की दोनों की शेयरिंग एक तरह से सेम थी और एक तरह से अलग थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए किया, इन्होंने अपनी जो रेगुलर प्रैक्टिस थी उससे उन्होंने गिफ्ट्स अट्रैक्ट किए कितने सारे, है ना। प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस ही जो चेंज लेकर आएगी। शालू, एक चीज पूछूं मैं, क्योंकि अभी जो हमने 10 डेज की प्रैक्टिस करी इसमें तो हम फ्यूचर का नहीं लिख रहे हैं ना अभी। हाँ, अभी नहीं लिख रहे इसके अंदर। हाँ, तो ये जो बोल रहे हैं वो आगे आएगा ना अपने पास। हाँ, अपने पास आगे आएगा जब डे 13 से शुरू होगा ना। आप फिक्र नहीं करो, जितना सिखाया जा रहा है उसको करो। जब नहीं हम नहीं, उसके मैं बाद, कल पता है मुझे ध्यान आया कि मुझे ना एक साड़ी गिफ्ट मिली, मैंने उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। मैंने उसको शाम को इतना ग्रेटिट्यूड दिया। 8 बजे दीदी का कॉल आया, मेरी सिस्टर इन लॉ का, भाभी मैं आज एग्जीबिशन गई थी, आपके लिए एक सूट गिफ्ट लेके आई हूँ। वेरी नाइस सी, आपने कपड़ों के लिए किया, आपको वो मिल गया। अमेजिंग अमेजिंग जब हमारा डे 13 शुरू होगा ना, सारी चीजों पर बात करेंगे, सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक पर। सिर्फ चैप्टर में दी हुई बात नहीं, कि हम और क्या क्या कर सकते हैं और कैसे एनर्जी, सब पर बात होगी, है ना। तो जब तक डे 13 नहीं आ रहा, मतलब डे 12, अब आज 11 हो गया, कल की और बात है, परसों से अपना फ्यूचर पे ही मैनिफेस्ट करना है, जो हमको चाहिए डिजायर पे आ जाएंगे अपना। ठीक है जी, चलो। आज हम लोग है डे 11, ठीक है। बहुत अमेजिंग, इस अमेजिंग चैप्टर जादुई सुबह, मैजिकल मॉर्निंग। जैसे हमने अभी 2-3 चैप्टर्स किए ना लास्ट के, देखो टाइम नहीं देना, बैठ के नहीं करना, आप चलते फिरते जो अपना काम कर रहे हो बस उसी दौरान पे उसको ग्रैटिट्यूड को यूज करना है, सेम ये प्रैक्टिस है। कुछ बैठ के टाइम नहीं देना, कुछ एनर्जी ऐसे कुछ बैठ के वो नहीं करना, चलते फिरते जो आप काम कर रहे हो बस उस चीज को आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको ये बताता है कि अगर आप अपनी सुबह के लिए ग्रेटफुल होगे, अगर आप अपनी सुबह, दिन नहीं सुबह, दिन का चैप्टर अभी आगे आएगा कि दिन को भी कैसे मैजिकल बनाना है, पूरे दिन को, सुबह को अगर आप सही कर लेते हो तो आपका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। और अगर आपका एक दिन अच्छा हो जाता है, आपका एक हफ्ता अच्छा हो जाता है, एक हफ्ता अच्छा होता है, एक महीना अच्छा हो जाता है, और जब महीना अच्छा होता है तो पूरा साल अच्छा हो जाता है। ये सब जुड़े हुए हैं। लेकिन जो बीच है, जो शुरुआती, जो पहला स्टेप है, वो है आपका दिन, और दिन का भी सुबह वाला हिस्सा।
जनरली हम सुबह उठते हैं तो हमारा थॉट क्या होता है, फटाफट उठो झाड़ू लगाने जा। जनरली लेडीज का माइंड में आता है कि सफाई करनी है, फटाफट उठो, सुबह हम क्या काम कर। अब देखा, जो सुबह का वक्त हम क्रिएट करने में यूज कर सकते थे, उस डिवाइन टाइम को अगर जो हम पॉजिटिव एनर्जी में क्रिएट कर सकते थे, अब वहां पे क्या आ गया थॉट, ये करना है वो करना है, अरे मैं आज लेट उठ गई। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया जा रही है, मेरी मम्मी का रहता है, अगर वो 5:30 बजे से 6 बजे उठ गई, मान लो 5 बजे नहीं उठ पाई, साढ़े, उनका आज मैं बहुत लेट, और पूरा दिन वो कहेंगी मैं आज बहुत लेट उठी, अलार्म नहीं लगाया किसी ने, ये वो, और पूरा दिन वो एनर्जी जाती है। ये प्रैक्टिस आपकी सुबह को खूबसूरत बनाना सिखाती है। इस दिन की शुरुआत मैजिकल, आप उसमें मैजिक यूज कर रहे हो, आप उसमें मैजिक डस्ट कर रहे हो सुबह से। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, बहुत सिंपल। और ये सब प्रैक्टिस कनेक्टेड प्रैक्टिस है जो हम पीछे करते आए हैं, वो कैसे, वो भी मैं बताऊंगी। जैसे आप सुबह उठे, बिस्तर पे बैठे बैठे, कोई और नहीं, जैसे आप उठे, बिस्तर बैठे बैठे, मैंने जब काउंट योर ब्लेसिंग्स में बताया था ना, बैठे बैठे आपको 5 ग्रैटिट्यूड करने हैं, कि थैंक यू सो मच कि मैं आज जिंदा हूं, मेरी आंखें खुल पाई, थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए, इतना सुंदर दिन के लिए, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी नींद के लिए, थैंक यू सो मच मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, थैंक यू सो मच कि मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। हमने शुरुआत कर दी मैजिकल वे में, हमने शुरुआत कर दी ग्रैटिट्यूड से, और ये तो हम करते आ रहे थे काउंट योर ब्लेसिंग्स के टाइम से, है ना। जो लोग करते आ रहे थे मैं उनका कह रही हूँ, और जिन्होंने नहीं किया वो अब करना शुरू करते, कि बिस्तर पे बैठे बैठे आप पैर भी नीचे नहीं रखोगे, आप थैंक यू महसूस करोगे, बोलना नहीं है, महसूस करना है कि यार मैं सुबह उठ पाई, एक और दिन मिल गया, मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ, मेरे को अच्छी नींद मिली, है ना। तो ये आपको बेड पे बैठे बैठे करना है, क्योंकि हम दिन की शुरुआत मैजिकल वे में कर रहे हैं। फिर जब धरती पर पहला पैर रखो, उसको छुओ, धरती माँ को छू करके थैंक यू कि आपने हमें रहने की जगह दी, थैंक यू कि आप हमें कितना सब प्रोवाइड करवाते हो, थैंक यू, ये जमीन, ये धरती, ये प्रकृति सब जुड़े हुए हैं, थैंक यू। और फिर आपने अपना दूसरा पैर भी रख दिया, पूरी कृतज्ञता महसूस करते हुए, आप बोल नहीं रहे कोई बात नहीं, महसूस करना है कि सचमुच में धन्यवाद। फिर आप हो सकता है वॉशरूम की तरफ जाओ, तो जब वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाओ, हर कदम पर अंदर भाव होना चाहिए, धन्यवाद 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 प्रभु। अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो पूरे उस रास्ते, अगर वो कुछ स्टेप का रास्ता है तो भी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद धन्यवाद, है ना। सुबह देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आज के दिन देने के लिए थैंक यू, मैं सुरक्षित हूँ, थैंक यू मेरे परिवार को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, धन्यवाद प्रभु। ऐसे करके आप भगवान का नाम भी ले सकते हो। फिर आप अपने बाथरूम तक पहुंचे, बाथरूम में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो उनके लिए कृतज्ञता, कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, मिरर भी है। क्योंकि जब आप ये देखते हो ना कि अरे यार मिरर, हम जनरली भूल जाते हैं मिरर के लिए थैंक यू करना, कॉम्ब के लिए थैंक यू करना, ऑयल के लिए थैंक यू करना, शैम्पू के लिए, सोप के लिए, इनकी सेपरेट सेपरेट कंपनीज हैं, करोड़ों करोड़ों की, अरबों अरबों की। तो ये छोटी चीज नहीं है, किसी ने आपको ये साबुन प्रोवाइड करने के लिए कंपनी खड़ी कर रखी है, लेकिन हम भूल जाते हैं। आप एक दिन बिना साबुन के नहाना, नहा कर देखो, आप स्किप करो उसे, आपको ध्यान आ जाएगा भाई बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी है। एक दिन बिना, एक बार बिना शैम्पू के बाल धो, जो बालों की हालत हो जाएगी ना, आपको ध्यान आ जाएगा भाई ये बहुत 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 जरूरी चीज है, बहुत शुक्रिया। तब ध्यान आ, एक बार वो चीजें स्किप करके देखो, एक बार आप अपना वॉशरूम यूज मत करो, आपको सब याद आ जाएगा यार ये बहुत जरूरी चीज है। वॉशरूम में जितनी मौजूद मौजूद चीजें हैं, टैप खोलते हो पानी आ जाता है, याद करो वो वक्त जब जब आपने टैप खोला था पानी नहीं आया था, कितनी चिड़चिड़ हुई थी, सुबह ही सुबह चिड़चिड़। और जब आपके पास ऐसा होता है ना कि सुबह खुलती है और ऐसा कुछ आ जाता है, फिर आपको लगता है अबे यार ये क्या ही मैंने कर दिया, क्या ही दिन देख लिया, क्या शुरुआत हुई है दिन की। बट टैप खोलती आज पानी आ रहा है, लेकिन हम ग्रेटफुल नहीं। अब जिस दिन पानी नहीं आएगा उस दिन बिल्कुल ऐसा हल्ला मच जाएगा कि पानी नहीं है पानी नहीं है पानी नहीं है, और जब तक वो पानी था तो कोई अप्रिसिएशन नहीं था।
उसको वो भी नहीं किया गया, अप्रिशिएट भी नहीं किया गया, एक्नॉलेज तक नहीं किया गया। तो ये सब चीजें आपका दिन बना रही हैं, ये सब जरिए हैं आपको फ्रेश तरोताजा करने के। आप एक दिन फ्रेश नहीं हो ना, मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रही, जाओ नहीं ना, वो जो पानी ना आए, हालत खराब हो जाती है। आप ये सोच सकते हो कि थैंक गॉड कि मेरा बॉडी कितना सही है। बहुत सारे लोगों को एक इशू होता है जिसकी वजह से वो लोग वॉशरूम नहीं जा पाते, बहुत प्रॉब्लम होती है, बट थैंक गॉड कि आपकी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट है यार, थैंक यू। तो उस चीज के लिए फील करो, ऐसे मौके मत आने दो कि कुछ गड़बड़ हो तो मैं करूँ ग्रेट। मैं तो भैया इसके लिए भी करूंगी, क्योंकि मैंने तो सुना है ये भी एक अगर प्रॉब्लम बन जाए ना तो ये भी हो जाती है, तो मैं तो इसके लिए भी करूंगी। हाँ जी, सो सॉरी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी सही है? ठीक है जी। हाँ, अभी थैंक अभी सही है। हाँ, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। तो एक मिनट। हम्म तो ये दिन की जो शुरुआत हो रही है ना, ये आपको फ्रेश करके उठाने की कोशिश हो, आपको दिन के लिए तैयार करने की वाली चीजें हैं सारी। आप सुबह सुबह अपने नाश्ते पर बैठे, तो नाश्ते के लिए थैंक यू, और ये वही चीज है कि खाने के टाइम खाने के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो। तो जो खाना आप खा रहे हो, बस वही अब अभी हम सिर्फ सुबह के नाश्ते के लिए कर रहे हैं, कि जो नाश्ते में ये जो चाय, आप जो जो चीजें छुओ ना सुबह सुबह तक, आपको उन सबके लिए थैंक यू करना है, कि मुझे नाश्ता मिला सुबह सुबह, इस नाश्ते से को करके मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। सुबह मैंने चाय पी, बहुत सारे लोगों को जगाने का काम करती है चाय, मतलब जो मेरे जैसे लोग होते हैं, वो बिना चाय पिए उनकी आंखें नहीं खुलती। तो ऐसे लगता है ना कि यार इसके बिना, जैसे कभी कभी कहते हैं चाय स्किप हो जाती है, फिर आपको फील होना शुरू हो जाता है यार चाय स्किप हो गई, चाय रह गई आज। तो अगर आपके पास वो चीज है, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। किचन में आपने नाश्ता बनाने में जो जो सामान का इस्तेमाल किया, सबके लिए ग्रेटफुल, कि यार थैंक यू कि मेरे पास ये भी था, 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 कितनी सारी चीजें हैं। और ये आपको ऐसे बैठ के प्रॉपर सोच के नहीं करना, आप जो जो चीजें छुओ, जो जो चीजें इस्तेमाल करो, आपको उनके लिए उसी वक्त में थैंक यू करना है। एक भाव फील करना है कि मेरे पास ये भी है। जब आप ऐसे बोलते हो ना, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, आपको नहीं पता, आपके माइंड को मैसेज जाता है कि यार कितना अबंडेंस में जी रही है ये। और अबंडेंस क्या करता है? अबंडेंस अट्रैक्ट मोर अबंडेंस। जब आप इस तरीके का फील रखते हो ना, कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, उन सब चीजों के लिए थैंक यू, इन सब चीजों के लिए शुक्रिया, तो आपके पास लाइफ में और ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी जिनके लिए आप थैंक यू करते रहो, अच्छी चीजें। फिर आप तैयार हो रहे हो, जैसे अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो आप तैयार हो रहे हो, तो आप कपड़े पहन रहे हो, उस कपड़े के लिए थैंक यू। उस कपड़े को बनाने में कितने लोग लगे हैं, कहाँ कहाँ से वो फैब्रिक आया, और आप उसको पहन पा रहे हो, आपके पास कितने सारे कपड़े पहनने के ऑप्शन है। हम इसको, हमारे पास ऑप्शन है कि हम आज, अगर चलो ठीक है आज ये कपड़ा नहीं पहनने का मन है, आज हम ये पहन लेते हैं, आज मैं ये रंग की साड़ी पहन लेती हूँ, या आज मैं इस रंग की शर्ट पहन लेता हूँ। हमारे पास कितने ऑप्शंस है। ऑप्शन सचमुच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके पास ऑप्शंस है। जिनके पास ऑप्शंस नहीं होते उनसे पूछो। खाने का ऑप्शन है, कपड़े पहनने का ऑप्शन है, मनपसंद साबुन यूज करने का ऑप्शन है, मनपसंद फेस वॉश यूज करने का ऑप्शन है, मनपसंद शूज पहनने का ऑप्शन है, फेवरेट नाश्ता करने का ऑप्शन है कि आज मुझे ये नहीं खाना, आज मैं ये खाऊंगी। ऑप्शन बहुत बड़ी चीज है, ये आपके फ्रीडम को आइडेंटिफाई करती है कि आपके पास, आप एक्चुअली में फ्री हो, फ्री हो कुछ भी चूज करने के लिए। आप शूज पहन रहे हो, आपके पास सैंडल्स हैं, आपके पास स्लीपर्स हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। एक दिन स्किप करके देखो, इनके बिना जिंदगी जीकर देखो, आपको एहसास हो जाएगा कि ये जो सुबह सुबह मैं इतनी सारी चीजों का इस्तेमाल करती हूँ ना, और ये सब सचमुच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि ये बहुत जरूरत की चीजें हैं। लेकिन जनरली इससे पहले मैंने कभी देखा ही नहीं कि मेरे पास तो 100-200 चीजें सुबह ही सुबह के टाइम में है।
कि जिनको मैं थैंक यू कर सकती हूँ। 100-200 बार तो मैं सुबह ही थैंक यू कर सकती हूँ। याद है आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि मैं दिन में 100 बार शुक्रिया करता हूँ। हमारा तो 100 सुबह ही हो गया और इतनी समृद्धि मैं पाता हूँ। जनरली अगर हम ये नहीं कर रहे होते ना, ये वाला प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, तो हम क्या करते हैं, मैं वो वाला साइड भी आपको दिखाती हूँ। सुबह उठते हैं, झिक झिक, आज हम लेट हो गई, हो गया, अरे फटाफट ये काम करना है, अरे वो डिब्बा कहाँ रखा हुआ है, अरे ये हो गया, हो गया, फटाफट नाश्ता कर लो, अरे ये भी कर ले, चल जल्दी फटाफट फटाफट नहा लो। और जल्दी अब नहा रहे होते हैं या हम बाथरूम में होते हैं, जनरली हमारे थॉट्स नोटिस करना नेगेटिव होते हैं कि यार इस अपने अभी पुराने थॉट्स आ जाएंगे कि यार ये लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अरे यार ये कैसे करना है, आज तो पूरा दिन मुझे ये काम करना है, आज तो पूरा दिन ये कैसे करूंगी मैं ये। उस पूरे टाइम को जो हम ग्रेटिट्यूड के लिए यूज कर सकते थे, उस पूरे टाइम को हमने किस चीज में, ब्लेमिंग कंप्लेनिंग में यूज कर लिया। और आपका दिन कैसे जाएगा? सेम। लाइफ कैसे रहेगी? सेम। ये सारे ना मौके हैं, जैसे मैंने कल भी बोला था, परसों के चैप्टर में भी बोला था कि यूनिवर्स ने हमें कई सारी ब्लेसिंग्स, कई सारे गिफ्ट्स दिए हैं। ये आपका, ये आपके ऊपर है कि आप उन गिफ्ट्स को पहचान पाते हो, आप उन अवसरों का यूज कर पाते हो, क्योंकि वो तभी आपको आपकी बाकी चीजें देगा जब आप सचमुच में इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होगे। वो तभी आपकी जरूरतें पूरे करेगा। जैसे रश्मि मैम ने शेयर किया कि वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनको था कि मुझे एसी चाहिए, उनको गिफ्ट मिला एसी, उनको जरूरत थी उसकी कि मुझे भाई ऐसा मेरे को फील हो रहा है, वो उनको गिफ्ट मिला, वो उनके घर में लग गया। सेम आपके सपने कहाँ से आप बोलोगे वो सब चीजें होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको वो शिद्दत से प्रैक्टिस करनी है कि मैं भाई स्किप नहीं कर सकती। क्योंकि अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करेंगे ना, अगर हम अच्छी चीजें नहीं चुनेंगे ना, तो हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में नेगेटिव चीजों पर ही ध्यान दे देंगे, क्योंकि हमारा माइंड इस तरीके से रिप्रोग्राम्ड है, इस तरीके से हमारा माइंड प्रोग्राम हो चुका है कि अगर हमने इसको दिन में हर वक्त ऐसे प्रैक्टिस नहीं करवाया, इस तरीके से ढाला नहीं इसको, इस स्ट्रक्चर में फिट नहीं करवाया, तो हम पुरानी ही लाइफस्टाइल जीते रहेंगे और पुरानी ही चीजों में उलझे रहेंगे और हम कभी उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, सालों साल हम उसमें रहेंगे। लेकिन अगर आपको उस चीज को छोड़ना है, तो आपको उसकी वाइब्रेशन से हटना पड़ेगा। जब तक आप नई वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करोगे, जब तक मैं नई फ्रिक्वेंसी में नहीं आऊंगी, मैं तब तक कुछ नया नहीं अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाऊंगी। मैं जब तक उस लूप को नहीं तोड़ूंगी, और उस लूप को तोड़ने का मतलब है उस वाइब्रेशन से हट जाना, क्योंकि वो लूप उसी वाइब्रेशन से क्रिएट हुआ था। अब मैं उस लूप में क्या थी, सुबह उठती थी, झाड़ू करना है या सफाई करना है या काम करना, उस काम करते करते मेरे जनरली थॉट्स नेगेटिव होते थे, मैं उसी लूप में रहती थी हमेशा। चाय बना रही हूँ तो 10 चीजें सोच रही हूँ, सुबह मैं फोन ऑन करके बैठ गई, मैं फालतू की बकवासें सुन रही हूँ, और फिर बाद में फोन रखा तो दिमाग में इतना सब भर गया मेरे। अब ऐसे लगा, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ये है वो है, खाना बनाते बनाते जो यूट्यूब पर देखा वही सब दिमाग में चल रहा है। ये सब कुछ क्या है, उसी लूप में हम उसी वाइब्रेशन में रहते हैं। अगर मुझे उस वाइब्रेशन से निकलना है, तो मुझे वो वाइब्रेशन क्रिएट करनी पड़ेगी जो नई है, जो ग्रेटफुल है। ये सारी प्रैक्टिसेस आपकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करना सिखाती है, आपको उस पुराने जोन से, उस पुरानी शालू से हटाकर एक नई शालू बनाती है। मैं अपना नाम इसलिए ले रही हूँ ताकि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओ। अगर मैं पुरानी शालू रही, जो सोचती रहती थी, नेगेटिव रहती थी, प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जो जो जिंदगी में चल रहा है उसी में उलझी हुई है, दूसरों से रास्ते देख रही है, वेट कर रही है बैठ के कि कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, लेकिन कर कुछ नहीं रही है, वो उसी लूप में रहेगी। लेकिन अगर जब उसने ये डिसाइड कर दिया, जैसे ममता मैम की तरह, ये डिसाइड कर लिया कि बैठिए आज मुझे करना ही है, आज तो मुझे कॉन्सेंट्रेट ग्रेटिट्यूड करना ही है, आज तो मुझे इस चीज के बारे में सोचना ही है, अच्छा, और मुझे आज, पहले मैं आज का फोकस करूंगी कि मुझे आज करना है, कल का नहीं सोचूंगी कि मुझे 10 दिन करना है, 15 दिन करना है, क्या पता मुझे एक हफ्ते में ये इच्छा मिल जाए। मैं क्यों सोचूं मुझे 1 महीना प्रैक्टिस करना है, क्या पता यूनिवर्स मुझे 1 हफ्ते में ब्लेस करने वाला हो। मैं क्यों बोलूं, मेरे को तो आज प्रैक्टिस करनी, मेरा फोकस सिर्फ आज रहेगा। और मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं कभी नहीं बोलती कि मुझे 2 महीने प्रैक्टिस करनी है। क्या पता यार, मुझे वो 10 दिन में, 15 दिन में मिलने वाली चीज है, मैं क्यों 2 महीने तक उसको लटकाऊं, क्योंकि जो मैं एनर्जी दूंगी मुझे उस हिसाब से ही मिलेगा। मैं रोज का फोकस करती हूँ कि मुझे रोज अच्छा करना है, रोज उस वाइब्रेशन में रहना है, क्योंकि मेरी फ्रिक्वेंसी अभी वाली जा रही है। कल क्या दी वो चली गई,
आगे क्या दूंगी वो अभी आई नहीं है। जो इस वक्त मैं फील कर रही हूँ ना, यही यूनिवर्स में मैसेज जा रहा है 24/7, कि अगर मैं अभी इस वक्त बैठ के अच्छा सोच रही हूँ, वो मैसेज यूनिवर्स में जा रहा है। इसलिए बोलते हैं प्रेजेंट गिफ्ट है आपका। जो प्रेजेंट मोमेंट है ये आपका गिफ्ट है, तोहफा है। जब हम ये समझ जाते हैं ना कि इस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, भले ही लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, ध्यान ही नहीं देना। आपका पूरा ध्यान आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, और आप उसके लिए क्या कर रहे हो, उस पर रहना चाहिए। ये जो प्रैक्टिसेस हम सीख रहे हैं, जब हम ये करते हैं, हमारी जिंदगी में वैसी ही चीजें आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब हम उस फ्रीक्वेंसी पर आ गए हैं। पहले हमने काउंटर ब्लेसिंग्स किया, उसको अपने हिसाब से, कि मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालूं प्रैक्टिस का, इसलिए मैंने 5-5 मिनट्स का उन 5 एरियाज के लिए टाइमर लगा दिया। अब मेरी बहुत सारी प्रैक्टिसेस उसी एरिया में मैं यूज कर रही हूँ, जैसे मैं सीखती जा रही हूँ। अब मैंने रिलेशनशिप का एक एरिया बना रखा था, अब मैंने रिलेशनशिप का उसमें सीखा कि मुझे रिलेशनशिप में उस पर्सन में अच्छा अच्छा ढूंढना, मैंने उसी 5 मिनट में जोड़ दिया। अब मुझे ऐसे लग रहा है 5 मिनट थोड़े कम बैठ रहे, मैंने उसको 7 मिनट कर दिया। उसी टाइम जोन को मैंने 7 मिनट कर दिया। अपने अलार्म में जाके टाइम जब मैंने रिलेशनशिप के लिए करूंगी तो मैंने 60 मिनट कर दिया। जब आप ऐसे बैठ के कॉन्सेंट्रेट करते हो ना एक ही चीज पर, हलवा नहीं बनाते कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, बल्कि आप जैसे पैसे के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, और आपने टाइमर लगाया कि मैं 10 मिनट इस पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड करूंगी, क्योंकि मेरे 2 चैप्टर्स इसमें आ गए हैं। पहला पास्ट का ग्रेटिट्यूड, और दूसरा जो मैं पैसा दे रही हूँ उसका। तो मैं 10 मिनट इसका कॉन्सेंट्रेट ग्रेटिट्यूड करूंगा, और 24 आवर्स में से 10 मिनट निकालना ईजी है। 10 मिनट हम सबके पास होते हैं, क्योंकि अगर हम बैठ के यूट्यूब देख सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देख सकते हैं, या फिर हम किसी का फोन आ गया, हम 20-20 मिनट, 25-25 मिनट उससे बात कर सकते हैं, तो हम अपने डिजायर के लिए वो 10 मिनट निकाल सकते हैं। आप पहले वो 10 मिनट पूरा कर लो, उसके बाद आप बाकी चीजें करो। ये सारी प्रैक्टिस उसी में आ रही, सब कुछ। और जब पूरा दिन में आप इस तरीके से एनर्जी दोगे कि शुरुआत आप इतने अच्छे से कर रहे हो, जब आप इसको नॉन स्टॉप कुछ दिन करते रहोगे, आप देखोगे आप जब सुबह उठ रहे हो ना, आप उसी एनर्जी से उठ रहे हो, आपके दिमाग में वही सारी पॉजिटिव चीजें आ रही हैं। जब आप वो जो लोग शुरू शुरू के 5 ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं डे 1 से, काउंट योर ब्लेसिंग से, नोटिस करना, वो जब सुबह उठते हैं ना, वो ब्लेसिंग्स अपने आप पहला थॉट आ जाता है कि यार मेरे को थैंक यू बोला, थैंक यू बोला। पहला थॉट वही आ जाता है, क्योंकि वो रिप्रोग्राम हो चुका है। आप उठते हो, उठते ही पहला थोड़ा थैंक यू कि मैं जिंदा हूं, थैंक यू सुबह के लिए, पूरा नॉन स्टॉप, क्योंकि वो प्रोग्राम हो चुका है। सोचो, अगर आप ये प्रोग्राम कर सकते हो, तो आप अपने डिजायर के लिए भी अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हो। जो चीज आप रिपीटेडली करोगे, बार बार करोगे, आपका माइंड उस चीज से प्रोग्राम हो जाएगा। आपकी बॉडी उस चीज को पहचानने लगेगी, आपकी बॉडी उस चीज को याद रखेगी। आज हम उस घबराहट को या उस डर को क्यों पहचान पाते हैं? क्योंकि कई बार हमने उसे महसूस किया है, इसलिए हमारी बॉडी को डर याद है। लेकिन अपनी बॉडी को वो प्यार, वो अच्छी फीलिंग्स, वो पॉजिटिविटी याद करवाना पड़ेगा, बार बार वो विजुलाइज करके, बार बार उस चीज को सोच के, बार बार ग्रेटफुल होके आपको। और जब आप ऐसे करते हो, आपकी बॉडी को वो याद हो जाता है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं कितनी प्रैक्टिस कर पा रही हूँ, आज मैं कितना वक्त अपनी प्रैक्टिस को दे पा रही हूँ, अपने आप को दे पा रही हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है। कि घर के काम, चीज ऑफिस के काम हम वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन एक अपग्रेड सब इंसान को चाहिए। कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, उसको भी प्रमोशन चाहिए, तो आपको भी अपनी लाइफ में चाहिए कि मेरी लाइफ भी अपग्रेड करे। मैं इस जोन में नहीं रहना चाहती, मैं इसमें भी अपग्रेड करना चाहती हूँ। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हम ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए स्किल सीखते हैं, हम कोई चीज सीखते हैं ताकि हम अच्छा प्रोजेक्ट कर पाए, हम डेवलपर सीखते हैं, सब चीज सीखते हैं। वैसे ही अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, उसको नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए, हम ये टूल्स सीख रहे हैं कि सुबह उठ के मुझे थैंक यू करना है, मुझे खाते टाइम इन सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहना है। ये सब आपको उस लाइफ, उस नेक्स्ट वर्जन तक ले जाने का तरीका है, आपको प्रमोट करने का तरीका है। जो जितने शिद्दत से सीखेगा, जितनी शिद्दत से करेगा, उतनी जल्दी उसकी जिंदगी बदलेगी।
तो आज का जो चैप्टर था वो था आपकी सुबह की आंख खुलने से लेकर आप जो काम के जाने तक तैयार होते हो वहां तक का जो सफर है, उस पूरे सफर को आपको कृतज्ञता के साथ जीना है। हर एक मोमेंट जो भी आप छुओ, आपको उन सब सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। ठीक है जी। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा सिंपल सा चैप्टर था, सिंपल बट आपके दिन को बेहतर बनाने वाला चैप्टर। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। शालू जी, मैं पूछूं? जी शालू जी, मुझे ना रिलेशनशिप से के चैप्टर से एक क्वेश्चन करना है। हाँ जी बताइए। जैसे कि किसी एक रिलेशन को बहुत अच्छा बनाना है, तो हम उसी रिलेशन के लिए ही ग्रेटिट्यूड लिखेंगे कि बाकी सारे रिलेशंस के लिए हम, नहीं नहीं, रिलेशनशिप के लिए हम, यानी क्या, जैसे किस तरह से ज्यादा बेटर है? जैसे मैंने ये ना उस टाइम पे भी बताया था, जब आप रिलेशनशिप के एरिया में करते हो ना, अगर आप एक रिलेशनशिप पे काम करोगे ना, आपके बाकी सब रिलेशनशिप अपने आप सही हो जाएंगे। वो सारी एनर्जी जुड़ी हुई होती है। अगर आप एक एक रिलेशनशिप पर आप फोकस कर रहे हो कि मेरे को उसमें ढूंढना है कि इस चीज, इस पर्सन में क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, आप उस पर्सन में कुछ नहीं ढूंढ रहे हो, आप वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो। वो वो जो पॉजिटिविटी है ना, वो आप अपने अंदर क्रिएट करो। आप धूड़ सामने वाले में रहे हो, लेकिन वो क्रिएट तो आपके अंदर हो रही है ना। और जब वो चीज आपके अंदर क्रिएट हो रही है तो आपके सारे जितने रिलेशनशिप्स होंगे ना, उन सब में रिफ्लेक्ट होगी। Okay. हाँ उसके साथ साथ बाकी रिलेशनशिप के लिए भी हमको ग्रेटफुल होना है ना, बाकी हाँ। जो भी है तो। जैसे आप किसी से बात करो तो आप भाव अच्छे रख के बात करो, तो वो ग्रेटिट्यूड की कैटेगरी में आ जाता है कि सामने वाला इंसान आपसे कुछ भी बुरा भला बोल रहा है, लेकिन आपको उसको ब्लेस करना है, आपको चुन। मैंने अगर ग्रेटफुल होना चूज किया तो मुझे हर स्टेट में, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, हर पर्सन के संग, हर चीज के संग सिर्फ ग्रेटफुल रहना है। हाँ। थैंक यू। थैंक यू थैंक जी, यू सो थैंक यू। मच। कोई और क्वेश्चन है? सालू जी, मेरे को पूछने का है। एक सेकंड। हेलो सालू जी। जी जी बताइए। नमस्ते। आप जो बोलते हैं ना कि आप रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करो, 5 मिनट, वो मेरे को सिर्फ कंफर्म करने का है। प्रैक्टिस करने का मतलब कि वही चैंटिंग करने का ना, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, वही 10 मिनट बोलते रहने का ना? नहीं नहीं तो नहीं, आपने कौन से तो चैप्टर से शुरू किया है सुनना क्लास? मैंने डे 0 से लिसन किया है, डे 0 से। डे तो 1 आप जो है ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, हाँ डे 1, हाँ उसको दोबारा से सुनो। हाँ। तो वहां पे बताया कौन गया सी है। प्रैक्टिस, मेरे को प्रैक्टिस के लिए पूछना था। आप जो रोज बोलते हैं कि 10 मिनट प्रैक्टिस करो, तो उसमें क्या, कौन सा करूँ प्रैक्टिस? वो मेरे को कंफ्यूज हो गई हूँ मैं थोड़ी। डे 1 में जो बताया गया है ना, वो यही बताया गया पूरा दिन, उस पूरे ओके चैप्टर में ओके, आप ही सुन 10। लूंगी। ओके हाँ प्लीज आप डे 1 जरूर सुन लो, क्योंकि वो बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा ना, तो उसमें अच्छे से ओके बताया ओके गया। काउंट योर ब्लेसिंग्स वाला चैप्टर आप एक बार दोबारा से सुन लो तो समझ में आ जाएगा डे वो 10 10 मिनट्स का मैंने क्या बताया। ओके। हाँ जी अब थैंक जरा यू। एक बार बोल दो ना, जरा 2 मिनट शॉर्ट में। जैसे अगर आपने टाइमर लगाया है कि मुझे 10 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है, हाँ तो दस हाँ, मिनट आप बरोबर 10, बरोबर। एक सेकंड मैं म्यूट कर रही हूँ। 10 मिनट आप मनी के लिए करोगे, 10 मिनट आप रिलेशनशिप के लिए करोगे, 10 मिनट आप हेल्थ के लिए कर रहे हो, 10 मिनट आपके पास जो भी चीजें आपके घर में मौजूद हैं उन सारी चीजों के लिए आप करोगे। करना क्या है 10 10 मिनट में? जैसे आपने 10 मिनट पैसों के लिए दिया, तो पैसों के लिए आप कितना अच्छा फील कर रहे हो, जो प्रैक्टिस हमने पैसों से रिलेटेड करी है वो उसी टाइम में कर, कि पास्ट में आपको कितना पैसा मिला, जब आप बचपन में छोटे थे किन किन लोगों ने आपके ऊपर पैसे खर्च किए, आपको वो सारी चीजें दिलवाई, तब पैसे आपके पास नहीं थे, लेकिन आज मौका है कि आप उन सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहो, उन चीजों को याद करके उन सारे पैसों के लिए थैंक यू बोलो। वो इन 10 मिनट में प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही हेल्थ में हेल्थ का करना है, और रिलेशनशिप में रिलेशनशिप का करना है। ठीक है जी। बाकी आप डे 1 एक बार ध्यान से सुनो, उसमें बहुत अच्छे से समझाया, पूरी चीज में, पूरे दिन उस चैप्टर में यही बात हुई है। थैंक यू जी। नेहा मैम। या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे वो दिन जो मैंने सवाल किया था ना, यू हैड आस्क्ड मी टू फाइंड आउट हाँ देयर इज वन मोर लेसन, सो व्हाट आई अंडरस्टूड वाज दैट when I got what I wanted, I left that magic book का practice, मतलब शायद I went
haywire, मैंने उस वक्त like sort of an ego कि शायद ये मैंने attract किया है, but it wasn't me. It was God's blessings, which I think I was ungrateful at that time. This is what I felt was the other lesson that I need to always remember, कि जो भी मिला है उसकी नियामत है, so I have to always be grateful, not only when I get it, but otherwise also. वेरी So नाइस। just let me know whether if there's anything else that you want to add. नहीं, वो जैसे अभी आपने बोला ना, इतना ब्यूटीफुल लेसन है। जनरली ये सबके संग होता है, मेरे संग भी हुआ था। जब वो आपको चीज मिल जाती है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाएगी ना, मैं ये प्रैक्टिस छोड़ दूंगी, मैं ये मुझे मिल जाएगा ना, मैं चैन से कुछ 10-15 दिन रहूंगी। आप प्रैक्टिस, वो जो है ना, वो पॉजिटिविटी है, वो प्रैक्टिस नहीं है। Yeah. तो यूनिवर्स भी देख रहा है कि आप क्या छोड़ने वाले हो क्या मिलने के बाद। तो वो कहता है मिलने ही नहीं दूंगा, करते रहो प्रैक्टिस। कई बार ऐसे होता है कि हम मैजिक बुक छोड़ देते हैं। ये मैजिक बुक नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। ये आपको उस पॉजिटिविटी में, उस अलाइनमेंट में, यूनिवर्स के साथ उस अलाइनमेंट में बनाए रखने का एक जरिया है। अगर आप वो कनेक्शन ही ब्रेक कर दोगे, तो आप बाकी चीजों के लिए जो आगे आप चाहते हो या आप आगे मैनिफेस्ट करना चाहते हो या आपकी लाइफ में आना चाह रही हो, वो आप रोक देते हो। और फिर ऑब्स्टिकल्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने कनेक्शन ब्रेक किया पॉजिटिविटी का, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी की तो चाह ही रही है अट्रैक्ट होना, वो हो जाती है फिर आपसे कनेक्ट। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लेसन है, और आपसे हमें भी सीखने को मिला कि कुछ भी मिले, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, क्योंकि वो जो मिला है ना, वो उसी बदौलत मिला है। हम तो पहले भी थे, पर हमें वो चीज नहीं मिल रही थी। और ये तो कभी मत बोलना, क्योंकि यूजुअली मेरे वर्ड्स हुआ करते थे कि यार ये हो जाएगा ना, मैं तो प्रैक्टिस छोड़ दूंगी, 10 दिन मैं घूमने जाऊंगी, 10 दिन में ये करूंगी वो करूंगी। और आपको एहसास ही नहीं होता कि वो सब एनर्जी जा रही है, क्या दे रहे हो, बल्कि मैंने और ऐसा बोला तो नहीं था, बट हाँ थोड़ा सुस्ता गई थी जो पहले हाँ, जो जोश से कर रही थी ना। आई थिंक आई टुक इट वेरी लाइटली। हाँ, तो यस, दैट इज व्हाट आई रियलाइज्ड दैट। ये बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन। जैसे अरविंद सर नहीं बोलते कि आप तब तक ही राजा रानी रहोगे जब तक आप प्रैक्टिस में जुड़े हुए हो। जैसे प्रैक्टिस छोड़िए, आप उसी चीज में आ जाओगे, उसी उसी कैटेगरी में जहां पर आप मजदूरों की तरह काम कर रहे हो। राजा रानी नहीं रहोगे, फिर आप मजदूर बन जाओगे, है ना। और वो ये लेसन है, वो ही सिखा रहा है कि छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो आपको दे सकता है ना, वो आपको गिरा भी सकता है। जो उठा रहा है वो गिरा भी देगा, और फिर वो बहुत बुरी तरीके से गिराता है, क्योंकि आप ऊंचाई पर आ चुके हो। आप वहां से गिरोगे, चोट ज्यादा लगेगी, या है ना। वही होता है, हमारे पास राइट। ब्रेकडाउन आते हैं तो बहुत भयानक आते हैं। बट ये अच्छा है ना, कि मुझे तो अपनी लाइफ में अच्छा ही चाहिए ना यार। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी भी तो काउंट ही कर रही थी, तो अच्छा है मैं अपना पॉजिटिविटी ज्यादा काउंट करूँ, है Yeah. हाँ। And मैम अभी जो आपने समझाया practices का, like count your blessings में we have to incorporate all the teachings for whatever areas we have learned. तो breakdown का separately ही करना है ना अपने को, जो breakdown वाले है नहीं practices नहीं, that ब्रेकडाउन has to be. नहीं, मैंने ही बोला कि हर किसी का मनी एरिया ब्रेकडाउन नहीं है। किसी का रिलेशनशिप है, हाँ। किसी का मनी है, सब है, किसी का हेल्थ है, किसी का कुछ डिजायर मैनिफेस्टेशन है, तो सबका अलग अलग। जिसका जो है उसका ब्रेकडाउन रजिस्टर अलग रखो, वो उसको उसी में करना है। लेकिन जो टाइमर वाला जोन है, अब जैसे मेरा जो हाँ। टाइमर वाला जोन है, उसमें मेरा रिलेशनशिप का नहीं है। मेरा रिलेशनशिप का जो टाइमर है, वो 10 मिनट्स का रजिस्टर अलग है, टाइमर वही है, रजिस्टर अलग है, बस। Okay, got it. मेरे 2 रजिस्टर्स हैं। एक में मैं जो भी अपना टाइमर लगाती हूँ सारी चीजों के लिए, उसमें वो रहता है काउंट योर ब्लेसिंग्स वाला पार्ट। एक मेरा अलग से है, मैं करती वही हूँ, वो टाइमर वही देती हूँ, लेकिन मेरा रजिस्टर अलग है, ताकि मुझे ध्यान रहे कि इस चीज पे मुझे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। इस चीज पे मैं 10 मिनट से 15 मिनट भी दे सकती हूँ, 20 मिनट भी दे सकती हूँ। या ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और मैम जो बिल्स है ना, जो हम लोग रोज लिख रहे हैं, लाइक मनी की प्रैक्टिस में, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई डोंट रिमेम्बर द अमाउंट, सो आई जस्ट से लाइक थैंक यू फॉर द मनी पेड, नहीं, दैट्स फाइन अप्रॉक्स राइट? अमाउंट, अप्रॉक्स अमाउंट आसपास। अप्रोक्सीमेट। हाँ, ठीक है। अमाउंट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो आपको फीलिंग देगा कि आपके पास इतना पैसा मौजूद था। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गिरिश्मा मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी। हाँ, आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं और आपके आइडियाज बहुत अच्छे लगते हैं।
थैंक यू वेरी मच इतना डीप और देने के लिए। हाँ, मुझे एक डाउट था, आपने जो ये लायन मैनिफेस्टेशन के लिए 88 टाइम्स लिखने के लिए बोला था, वो मैं लिख रही हूँ रोज। कल बहुत थक गई थी, कल लिखने की जरा भी इच्छा नहीं हो रही थी, आंखें बहुत दुख रही थी, फिर भी मैंने लिखा। पर मैंने देखा कि वो लिख के जैसे ही वो खत्म हुआ, एक अलग सी एनर्जी आ गई और आंखें जो थक गई थी वो पूरी ओपन हो गई है, जैसे आप हर बार बोलते हो। तो हाँ, मैंने वो ट्राई कर रही हूँ, मैं पक्का नहीं बोलती हूँ, मैं कर रही हूँ। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। और इसका ये लिखने के बाद ये कब तक लिखना है मैम? ये आपको लिखना है 8 दिन, मतलब 8, अगर आपने 8 तारीख से शुरू किया है तो आपको वहां से कंटिन्यू 8 दिन तक लिखना है। आप देखो कौन से डेट पर 8 कंप्लीट हो रहा है। आई थिंक 15 पे ओके, कंप्लीट हो 16 मैम। रहा है। मैंने 16। 8 को चालू किया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं क्या करूँ मैम? इन पेपर्स का उठा के रखूं अपने पास जला संभाल देना। के? नहीं, आप संभाल के रखना चाहते हो, संभाल के रख सकते हो बिल्कुल। अगर आपको ऐसा है कि मैं संभाल के रख नहीं सकती, आप इसको एक बर्तन में जला देना। और जब जलाओ तो थैंक यू यूनिवर्स, इसको फुलफिल करने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इसको फुलफिल करने के लिए आपको ऐसे ऐसे बोलते रहना। और जब वो पूरा जल जाए तो उसको या तो जैसे गमले गमले हो या कोई मिट्टी हो, कोई गार्डन हो, उसकी मिट्टी में आपको इसको डाल देना है, थैंक यू करके। ओके अगर मैम। आप वो नहीं कर सकते हो, टेरेस पे जाना, उसको ब्लो कर देना है, क्योंकि एशेस बहुत ज्यादा होते हैं, आप ब्लो नहीं कर पाओगे, तो बेटर ये है कि आप मिट्टी में डाल दो उसको। फ्लश ओके नहीं करना, ओके। फ्लश नहीं नहीं, करना, नो। ये आपके ड्रीम्स हैं। हाँ, हाँ नहीं, मैं हमारे पास घर में झाड़ बहुत सारे हैं, तो मैं उनमें उसको रख दूँ, डाल दूँ। ओके जमीन में मैम। डाल क्या दो, मुझे? यूनिवर्स को एनर्जी देते हुए, जमीन को एनर्जी देते हुए। ओके मैम। और एक रिक्वेस्ट मैम, मुझे इसके रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे मिलेंगी? ग्रुप में मिल यूट्यूब जाएंगे पे, क्या? हाँ ग्रुप में अगर आप हो ना, तो ग्रुप में मैं आज डाल दूंगी प्लेलिस्ट। वरना आप जैसे ओके। जाओगे ना वहां पे यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें हाँ। वीडियो सेक्शन में सारे मिल जाएंगे, वरना प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहां पर इसका पूरा प्लेलिस्ट है। वैसे मैं ग्रुप में ओके डाल, मैम। और ग्रुप में ओके। रेगुलर आता भी है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। यूट्यूब पे किस नाम से है? यूनिकॉर्न शालू। अच्छा अच्छा, यही जो आपका आ रहा है। जो, हाँ जो आ रहा है ना, उसी नाम से। ओके। हाँ, सेम स्पेलिंग सब कुछ ये। अच्छा, मोनिका। स्टार्टिंग से क्लास मिस हो गई ना। हाँ, प्लीज स्टार्टिंग से सुनो तो ज्यादा बेनिफिट देगा। हाँ, तो अब उसको सुनूंगी ना। हाँ जी, आप सुनिए। थैंक यू। मैं मलेशिया में हूँ ना, तो टाइम मेरा अलग हो जाता है ना। हाँ जी, मेरे अरे यहाँ थैंक यू सो मच आप जुड़े। 8:30 से आपका शुरू होता है। अच्छा, कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग So, देखिए। ओके। और इस ग्रुप के नीचे ना कम्युनिटी ग्रुप का लिंक आ जाएगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जो लोग ग्रुप में नहीं है ना, क्योंकि वहां पे सारा कुछ टाइम टू टाइम आता रहता है। मोनिका मैम। गुड इवनिंग शालू। हाय। शालू, मेरा एक क्वेश्चन था कि एक्चुअली आई वाज प्रैक्टिसिंग ये 8 days वाला भी, बट 2 days बिफोर कुछ बहुत मेजर चैलेंज आ गया, आई लॉस्ट समवन। तो वो 2 days का तो बिल्कुल जैसे आप क्या समझ सब गई मैं। मिस हो गया। तो अब क्या, व्हाट टू डू? और जैसे ये प्रैक्टिसेस ब्रेक हो गई, तो उस केस में क्या करना चाहिए? पहले तो गिल्ट नहीं लाना है, सबसे पहली चीज। कभी कोई चीज मिस हो जाए ना, गिल्ट नहीं लाना है, ठीक है। एक ओके। नेचुरल चीज थी, कोई बात नहीं है, आप दोबारा से स्टार्ट करो। दोबारा से मतलब आप उसी में ऐड ऑन कर दो डेज। अभी आप 4 दिन या 8 दिन, वो 4 दिन या 5 दिन लिख चुके थे, तो अब यहाँ से आप आगे बढ़ो कि और कितने दिन मेरे बच्चे हैं 8 कंप्लीट होने में, मुझे उतना और ठीक हाँ। है मैम। तो लेकिन मैम मैं पीछे टोटल, वाला भी अभी अभी लिख लूं? हाँ आप लिख लो, उसको लिख लो। ठीक। ठीक ठीक है है। मैम, थैंक यू। और जैसे ये मेरे रूटीन प्रैक्टिसेस भी मिस हो गई, हम्म। थोड़ा सा वो ब्रेक डाउन हो ही जाता है। हाँ, तो कोशिश ये करो कि आप सुन लो चीजों को, क्योंकि हमारा जो जनरली चैप्टर रीडिंग होता है ना, वो 20 to 25 मिनट्स का ही होता है। उससे पहले शेयरिंग होती है, उससे पहले बाद में क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो 20 to 25 मिनट्स जो अपने है ना, जो क्वेश्चन, जो मेन चैप्टर हुआ है, वो आप सुन लिया करो। कभी आप उसको 1.5 की स्पीड पे भी सुन सकते हो, कि आपके पास टाइम नहीं है, 10 मिनट ही है, पर कम से कम मैं इसको स्पीड में ही सुन लूँ कि इंपॉर्टेंट क्या बताया गया, और मैं उसको प्रैक्टिस करूँ। ओके। हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। प्लीज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही है ये, आपकी प्रैक्टिस ही की एनर्जी है जो
आपकी लाइफ में वो सारे सपनों को पूरा करते रहेगी, है ना, जितना आप शिद्दत से कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। दिल की गहराइयों से धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, बहुत प्यार से जाते हैं। so much, Shalu. Thank you, Shalu. Shalu ji. Thank you so much. God bless you. Thank you. Thank you, Shalu. Thank you so much. Thank you. Ma'am, we have to do magic dust. We have to do magic dust. फटाफट से ना सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो और सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेसिंग्स देंगे कि जितने सबके सपने हैं, जो सबसे मेन बड़ी इच्छा है ना जिसके भी मन में है, वो पूरी हो जाए, उसको इतनी एनर्जी मिल जाए, उसको इतना सोल्यूशन मिल जाए, उसको कहीं से भी कोई चीज आ जाए जो उसके उस सपने को पूरा कर दे, जो उसका मेन सपना है। सबको यही ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है? अपना माइक ऑन करके सबको ब्लेसिंग देने के, जिसका जो जो सपना है, जो भी मेरे को स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है, जो भी जितने भी लोगों का जो भी मुझे दिख रहा है, सबके जो जो डिजायर्स है, यूनिवर्स सॉल्यूशंस, वो रास्ते सब भेज जो सपना है वो पूरा, जो भी सपना है वो पूरा, जो भी सपना है वो परिवार में सब जो भी सपना है जो भी सपना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।